और आपका अच्छी वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने दी थी और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है आई बुक्ड ₹3500 ₹35,000 प्रॉपर्टी टू स्टे इन उदयपुर राजस्थान इंडिया #weekend ट्रिप्स। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हम लोग बहुत छोटे बजट पे, थोड़ा 300 पे कर दीजिए ना। हमारा ऐसे बजट ट्रिप है बहुत ज्यादा, तो 300 देखिए 350 लगा दें। 250 रुपीज 35,000। हाय गाइस एंड वेलकम टू उदयपुर। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में ना कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आई रियली लव उदयपुर। मैं यहाँ पे पिछली 2 बार आ चुकी हूँ ऑलरेडी। द फर्स्ट टाइम आई केम हियर आई वाज 19 years old in fact. So I have a lot of recommendations for you from this place, but because Udaipur is a destination which is fit for all kinds of travelers. So इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। One is going to be a complete budget experience, जिस दिन मैं सिर्फ ऑटोज में ट्रैवल करूंगी, बजटेड प्लेस में रहूंगी, and I will show you the experience of Udaipur from a budget traveler point of view. And one part of the video is going to be extreme luxury. The place that I'm staying at is called Hotel Ashia Haveli, and I booked it for a total of 3500 for 2 nights in fact. इसको ढूंढने में मैंने बहुत एफर्ट लगाया, like literally 2 days I was sitting on bookings. Finally जाके एक अच्छी प्रॉपर्टी मिली एंड किस्मत की बात देखो, यहाँ पे जिस दिन मैं पहुंची, जैसी पहुंची, the room that I had booked got upgraded to this really nice room that is in my background, and that was completely out of luck. एंड जहाँ तक बजट की बात आती है ना, लेट मी टेल यू माई बिगेस्ट बजट हैक फॉर गेटिंग ट्रिप रेडी और फेस्टिवल रेडी। एंड यू नो, जनरली फॉर फेसिंग द कैमरा एंड फॉर गोइंग प्लेसेज यू फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर रेडी, राइट? एंड अर्बन कंपनीज एट होम salon services are available at unbelievable prices. I got my threading and facial done right before coming here, and it was just amazing. Since I did not have time to visit a salon, Urban Company's salon at home services offer a great convenience at my doorstep. And talking about safety protocols, the person who came to my doorstep for the service was wearing gloves, a face shield and a mask at all times. She also cleaned up the station very thoroughly after the work was done, as if the service never happened, and I just had to sit back, relax and really just enjoy the service. Now I'm really pumped about exploring Udaipur in style but yet on a budget. Also, with the wedding and festival season right around the corner, Urban Company's at-home salon services makes for a perfect solution. So go ahead and click on the link in the description box below and get festival ready with Urban Company's services at home. तो ये एरिया जहाँ पे मैं रह रही हूँ, इसे अक्सर ओल्ड उदयपुर कहा जाता है, एंड दिस इन पर्टिकुलर इज लाल घाट, जहाँ पे बहुत सारे बजट स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट नो डाउट मेरी एस्पिरेशन एज अ 19-year-old वाज कि लाइफ में बस मुझे एक बार ताज लेक पैलेस में रहना है। So we'll find out what happens on our luxury day, but in the meantime, let's go ahead and get right into spending a day in budget. So these are for 20 rupees each, तो मेरा टोटल बिल फटा 40 रुपीज का हो गया। मैं अभी अपने होटल से निकल के आई थी ब्रेकफास्ट खाने के लिए, एंड द ओनली ओपन प्लेस दैट आई कुड फाइंड वाज अ प्लेस कॉल्ड ब्लू विला. इट वाज अराउंड 500-600 meters away from my hotel, and I ordered egg paratha and iced americano. Egg paratha was for 140 and iced americano was for 110. So total comes down to around 250, which I think is pretty good. So it's around 4 PM right now, and I'm leaving for some lunch. मतलब not lunch exactly because मेरा जो breakfast था वो काफ़ी heavy था. अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा like a quick bite के लिए, and then I want to leave for a special place for sunset.
रोपवे के लिए कितना लगेगा? रोपवे 150 150 100 रुपये से भी और कम पड़ता है। पेट्रोल महंगा है ना, वो भी सोचो ना। So guys, let me tell you what happened. I basically wanted to go to Karni Mata ropeway, लेकिन I just reached the ticketing counter and because it's a Saturday today, there's a 30-minute waiting period over there and sunset already हो रहा है, like it's already, you know, setting. So अगर मैं ropeway लेती तो I would have missed the sunset, which is why I'm here at a sunset point. And यहाँ पे उदयपुर में I think the best thing is you'll get to see all these really nice orange colors in the sky as soon as the sun sets. It's just very beautiful. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? How come the Sunset spots पे आई थी मैं, so I thought why not get some कुल्हड़ वाली चाय and some मटर. अगर आप राजस्थान आए और आपने मटर नहीं खाया तो क्या खाया? I am going to have these two things with this view. और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड लग रही है. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. डायरीज है ना। It really makes me wonder. Ooh, I wonder. Guys, you just won't believe कि आज मेरे सुबह का अलार्म क्या था. So अभी मैं fully ready हो चुकी हूँ. मैं निकल रही हूँ आशिया हवेली से to go out towards some places and on the way I'll make a quick stop to eat something, you know, कुछ ऐसा street food types, कुछ yummy delicious. I'm thinking maybe Dabeli. So from here I'll walk down to Jagdish Mandir, which is like a very common landmark of Old Town Udaipur. और वहाँ पे बहुत सारी खाने की जगहें हैं. So I'll find something very easily over there. By the way, I got this dupatta just yesterday from the market and this costed me around 250 rupees, but looks so pretty, no? Traveling around the world, my feet will tell me where to go. I'm not afraid to step outside and see the world for what it is. No, spending all my time with people that I barely know. You may have thought that I was lost, but all I need is room to grow. I'm coming home to put a flower in your hand. So Dabeli कितने की है? ये 50 रुपीज़ का है। 150 का. So this is going to be my 50 rupees ka meal today and I hope it's a good one. I think I'll have to go on a hunt for better Dabeli. हाँ 350। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है. सो मैं आई हूँ सज्जनगढ़ बिकॉज ये भी अच्छी जगह है घूमने की एंड आई बीन हियर बिफोर एंड आई रियली लाइक द प्लेस एंड द व्यू फ्रॉम ओवर देयर इज जस्ट अमेजिंग एंड स्टनिंग. तो सज्जनगढ़ पहले ना जीप जाया करती थी लाइक ऑल द वे टू द टॉप. सो यू हैड टू बुक अ जीप आफ्टर यू रीच दिस एंट्री पॉइंट ऑफ द फोर्ट बिकॉज इट्स ऑन द हिल. तो जीप तो अभी बंद हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, बट यहाँ पे भी बहुत सारे टू व्हीलर्स की फैसिलिटी है. सो यहाँ पे यू हैव टू रेंट अ टू व्हीलर एंड देन गो टू द ड्राइव टू द हिल योरसेल्फ. तो अभी भैया के साथ मोल बहुत चल रहा है. बताइए कितने में होगा? आप वो ले जा रहे हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए। कौन? वो जो गाड़ी जा रही है ना हमारी, हाँ। वो 400 में जा रही है। मैंने आपके लिए 50 कम किया है। हम लोग बहुत छोटे बजट पे, थोड़ा 300 पे कर दीजिए ना. हमारा ऐसे बजट ट्रिप है बहुत ज़्यादा, तो 300 देखिए 350 लगा देंगे। कर दीजिए ना, 300 कर दीजिए. कर दो, जो जल्दी आ जाएंगे. थैंक यू.
तो मैं भी आई हूँ सज्जनगढ़ फोर्ट में एंड आई फाउंड दिस वन रियली नाइस स्पॉट ऑन द सेकंड फ्लोर जहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, विंड बहुत अच्छी चल रही थी. यू कैन एक्चुअली सी ऑल द लेक्स ऑफ उदयपुर एंड दैट वन सर्टन पॉइंट स्पेशली जो मेरे पीछे है जो पॉइंट है, यहाँ से सारे पैलेसेस दिख रहे हैं, यहाँ से पूरी लेक्स दिख रही है. सो यू कैन गेट द इंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द सिटी ऑफ लेक्स फ्रॉम ओवर हियर एंड दैट्स द रीजन वाई पीपल मोस्टली कम हियर. इट्स ऑल्सो अ ग्रेट सनसेट स्पॉट. लेकिन आज मैं संडे के दिन आई हूँ. आई वॉन्टेड टू स्टे ट्रू टू द एक्सपीरियंस. संडे को द ओनली shortcoming of this place is that it's pretty crowded. Like there are a lot of people over here. So even finding a spot to sit on was a little difficult. अरे यहाँ का व्यू देखोगे तो आप खुद हो जाओगे. नहीं हो तो भले मैं आपके साथ चल दूँ. मैं झूठ बोल रहा हूँ. और बोलो. Guys, I'm over here at Hanuman Ghat. I have with me Shivani. Hello. And she is a subscriber, follower. So she just came and said hi and it was super sweet. So I thought कि चलो साथ में vlogging करते हैं. How are you enjoying Udaipur? That's beautiful. It's beautiful, no? Like, see, we are so close to Taj Lake Palace. Yes, exactly. It's right here. It's wonderful. The reason why I'm here is क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले सज्जनगढ़ फोर्ट पे थी क्योंकि वहाँ पे आज बहुत सारे लोग थे. So I came to Hanuman Ghat and this place is what can get you the closest to Taj Lake Palace. Like literally it's right behind me and the view is actually very good from over here. The auto driver said to me कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इससे अच्छा नज़ारा सनसेट का, लेक का, बोट्स विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू उसका एंड इतने क्लोज होने का टू द लेक नहीं मिलेगा कहीं से भी इतना अच्छा नज़ारा. सो यू शुड गो टू हनुमान घाट. सो आई केम हियर एंड आई मस्ट से दैट इट्स अ वेरी इंप्रेसिव प्लेस. और इस साइड पे बहुत ही अच्छा सा भी सनसेट भी देखा मैंने. यहाँ पे भी मैं आई हूँ निकल के. वेरी क्लोज वॉकिंग डिस्टेंस पे एक जगह है विच इज कॉल्ड फूडीज कैफे. मैंने पास्ता ऑर्डर किया है, पिंक सॉस पास्ता एंड पास्ता इज़ वेरी रीजनेबल एक्चुअली. 150 का पास्ता है. सो इट्स ओके. आई थिंक भूख लग रही है थोड़ी सी एंड आई डोंट वांट टू ईट स्ट्रीट फूड. आई वांट टू ईट समथिंग वेरी मैसिव. बहुत भूख लग रही है, बहुत चल रही है लिटरली. सो गुड. बहुत अच्छा. एक तो म्यूज़िक चल रहा है साइड में एंड यहाँ बहुत अच्छा खाना है. खाना जनरली बहुत अच्छा है. म्यूज़िक के बारे में आई एम अ लिटिल sarcastic right now. While walking on this bridge, I just ran into these guys. Hi. What are your names? My name is Giri Kumar. Sharat. So their channel is called Find Me Giri, and I just ran into them, and they said that they were actually looking for me because they saw on Instagram. Yes, actually we were just searching for Tanya because we are also in Udaipur, and she just mentioned. Yeah, and these guys actually vlog in Tamil. Yeah. So if you're especially from Tamil Nadu, you should follow them also. Kindly, Thank you. Thank you. Nandri. Okay. Bye bye. Thank you. Don't hold back. Just how do you feel? Could you find the sound that would make it real? Guys, so it's about time that I check out of this amazing place, Ashia Haveli Hotel. But आज दिन आ चुका है. Yeah, it's a very small town and you get to hear all kinds of sounds over here. But आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपने लिए एक लग्जरी एक्सपीरियंस बुक करने वाली हूँ. So I'm just going to the hotels in Udaipur. Oh shit, Taj Lake Palace, guys.
मेरे को हमेशा से ताज लेक पैलेस में रहना था. This is like my biggest aspiration ever, and I just came to know that the price is, even on a Monday, 45,200 per night and 8,000 taxes. That means it's going to be 53,300. That's insane. Should I really go for Taj Lake Palace? I'm literally stressing out right now. So I have decided that I'll set the milestone कि अगर हमारी इस वीडियो पे 1 million views हो गए या फिर 50,000 likes आ गए. So if you do go ahead and like this video, I'll come back to Udaipur and take you to Taj Mahal Lake Palace. And this is not going to be a collaboration. I'll spend out of my own pocket from the money we earn out of this video to give you that experience. And for today, I've decided on the property Leela Palace. Leela Palace का मुझे balcony view वाला room जो मिल रहा है, it's the third best room, not third, second best room in the property. That is costing me 35,000. So it's literally 10x of where I'm staying. So it'll be a good comparison point. I'm going ahead and booking it. And धक धक हो रही है मुझे बहुत जोर से दिल में. Even while hitting pay, बहुत जोर से धक धक हो रही है. And it's done. Taj. So guys, I'm here with the owner of Ashia Haveli, Satyadev Singh ji, and ये उनकी daughter है भावना. And मेरी hospitality यहाँ की was beyond words. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रह के. And also the food was very good. So I would really recommend that you come and stay here. Thank you so much. Thank you. Okay. It was nice having you. Okay, bye. Bye bye. Thank you. Alright guys, ये है मेरी ride for today. Very nice, clean auto, बहुत ही सुंदर चमचमाता हुआ. और हम लोग इसमें बैठ के अभी जाएंगे बोट जेटी की तरफ and then we'll head to लीला. Let's go. लीला Awake on the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. लीला पैलेस से उन्हें बोले मान के नहीं बनाया. लीला पैलेस. Guess your love is strong. Why would it matter? Thank you sir. Welcome to the palace, Miss Manager. Thank you. Okay. Oh, there's a musical instrument. So nice. It's called Ravana. Yeah, it's a local maybe please offer you fresh watermelon and mint, signature welcome drink. Thank you so much. We have your room on the highest floor of the palace, which is on the 3rd floor. Okay. This way, please. Alright. Let's go.
वेलकम टू द लीला पैलेस उदयपुर। आई हैव चेक्ड इन, छोटी सी चेक इन फॉर्मेलिटी थी, उससे पहले थोड़ा सा वेलकम हुआ मेरा। और रूम भी बढ़िया है, थोड़ा सा साइज में मुझे लगा कि छोटा है, बट आई गेस ओके। आई बुक द हेरिटेज रूम विद द बैल्कनी एंड इट्स ऑन द हाईएस्ट फ्लोर। मी टेल यू क्विकली कि यहाँ पे क्या क्या है। देयर इज लाइक अ बाथटब एरिया, पॉटी एरिया, शावर एरिया एंड देयर आर ऑल्सो 2 sinks जॉइनिंग ऑल ऑफ दीज एरियाज। उसके बियॉन्ड बहुत बड़ा सा एक एरिया है जहाँ पे आप सारा अपना लगेज स्टोर कर सकते हैं। एंड देन इन दिस मेन room, of course, we have a study table behind the bed, and there's a sofa over here, also a little seating area by the mirror, and there's a balcony also in front of me. Balcony से view भी बहुत अच्छा है, but I think sunset is going to be an even better experience. So I am thinking that today evening, let's do sunset from here only. Okay guys, this is the moment of truth. How is the pastry over here? And plus मेरे face की chocolate. The back is also chocolate. Wow. It's fixed with chocolate. It's fixed with molten chocolate. Oh, wow. काफी nice looking pastry. So a few updates on my luxury experience so far. Firstly, यहाँ पे रहना एक बहुत ही overwhelming experience है and I can't believe that this is actually happening. क्योंकि जहाँ पे मैं पहले रह रही थी वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, like on a budget it was great. वहाँ की terrace से जहाँ पे आप खाना खाते हो बैठ के, वहाँ से view बहुत बढ़िया था. But over here you get a private and exclusive really good view. But definitely like a 5-star hotel, बहुत ही सारी randomly cool चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि plugs over here to all the lamps, the switches, everything is very cool. And I was also looking at the lunch menu. There's a QR code that they gave me and they said कि आप यहाँ से lunch select कर लीजिए. Now here's the funny thing. यहाँ पे कुछ भी on their menu 500 रुपए से कम नहीं है. And जो चीज़ें you know 675, 700 रुपीज़ की हैं, वो भी ऐसी चीज़ें हैं जो eggs और sides dishes होती हैं. और जो lunch का सामान है सारा, that's all 1500, 1000. But we are going to order something for lunch and I'm thinking of doing in-room dining only because that's also part of the experience and I could also work out of this place. And बाहर क्योंकि अभी वैसी गर्मी हो रही है and I have a great view, I can just look at the view while sitting here on my desk. ऐसे बीच बीच में मैं view को निहार सकती हूँ ऐसे ऐसे करके and I can work and eat inside the room only. So lunch ऑर्डर करने में मैंने बिल्कुल कंजूसी नहीं किया है. यहाँ पे मैंने 3 डिशेस ऑर्डर किए हैं. वन इज थाई वेजिटेबल करी, वन इज राइस, जैस्मिन राइस which came with it, and there's also lentil soup plus there's some paneer tikka. All of this costed a total of 4320 rupees. मैंने अभी भी दाल खाई मेरी, basically soup. I loved it. It was a very nice preparation. And now I'm going to have some paneer tikka. Paneer tikka है बहुत yummy. And it's so quiet over here. क्योंकि last couple days में I think the only difference that I can say is कि मैंने जहाँ पे भी खाना खाया है वो बहुत ही रोड के क्रॉस जंक्शन में था. एंड रोड में ऑब्वियसली ट्रैफिक की आवाज़ होती है, ऑटोज की आवाज़ होती है, बाइक्स होती हैं एंड ऑब्वियसली उनकी हॉन्किंग की भी आवाज़ आती है. सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द 2 ईटिंग प्लेसेस irrespective of the price was also the sound over here. There's none. This room is 100% quiet. But for now let's destroy this. And इसके ऊपर let's put all the curry. Yum. I think the only thing this place is missing is probably a microwave. So we are going 6:30 no for the boat ride. 6:15 yes. This is probably my best sunset in my Udaipur trip. यहाँ पे मेरे पीछे है पूरी लीला की बिल्डिंग. That's Rupal by the way everybody. Hi Rupal. Hi. Namaskar. Namaskar. And that over there is my room actually. I can even see it from over here. And here is the sunset. So beautiful. And ये एक छोटा सा sunset spot है where you can sit and enjoy the sunset. And it's so quiet over here because there's literally nobody except for me over here. It's so cool. Wow, this is such a good view. The sunset was so beautiful and now we're leaving for the boating experience.
still lives in City Palace, तो वो मेवाड़ के अभी करेंट किंग है। एंड दिस इज द सिटी पैलेस बिहाइंड मी। मैंने इस ट्रिप में सिटी पैलेस के अंदर से दर्शन नहीं किए बिकॉज मैं पिछली 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हूँ। आप आए तो सिटी पैलेस ज़रूर विजिट करें, स्पेशली दिस इज योर फर्स्ट टाइम एवर हियर। इट्स वेरी नाइस प्लेस, बट मैं बहुत खुश हूँ बाहर से देख के आज बोट राइड पे एक्चुअली। यहाँ पे एक बहुत एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है विच इज़ डाइनिंग एट शीश महल। दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ लीला। पहले मैंने सोचा था मैं जग मंदिर जाऊंगी, बट आई कैंसिल दैट प्लान बिकॉज आई कम टू रियलाइज शेयरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ शीश महल इज गोइंग टू बी वेरी एक्सक्लूसिव इन आवर वीडियो। सो लेट्स डू दिस। Everybody, I'm here at Sheesh Mahal now, and Sheesh Mahal की speciality है that's an Indian restaurant and also has Rajasthani cuisine on offer. I'm sitting at a table जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे destination dining because it's like a semi-circle sort of and overlooking the view, and this is one of the most exclusive tables over here. So Shweta here just told me कि ये table को reserve करना पड़ता है। मेरे पास नहीं थी reservation, but somehow she still accommodated me and I'm feeling so pleased. Thank you so much. Thank you. And Shweta also told me कि property में apparently सब लोग मुझे जानते हैं। Is that so? No, everybody knows you. Really? Yeah. I'm one of your follower, ma'am. Oh, like, really? I'm following you from very long. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. So while I'm waiting for my food, I've already placed my order. यहाँ पे एक live रोटी काउंटर है जहाँ पे बाजरे की रोटी बन रही है, तो मैंने सोचा why don't I also try my hands at cooking some roti over here on a चूल्हा। इस चूल्हे का नाम क्या है? मिट्टी का चूल्हा। ठीक है, तो एक मिट्टी के चूल्हे पे हम लोग अभी थोड़ा सा कुकिंग रोटी पकाने वाले हैं। सो दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस। मैंने किसी गाँव में एक्सपीरियंस नहीं किया, बट माइट इज एक्सपीरियंस इट एट लीला पैलेस। Good evening. My name is Rupak. I'm the chef in charge of Sheesh Mahal right now. Okay. So we do have Amush Boosh, which is just a pre-starter, you can say. Okay. So we serve akroot ki tikki with some organic beetroot chutney along with that, and we serve a little bit of shikanji, which is like lemon and mint shikanji. Okay. Just a palate cleansing kind of. Lalmas, it is like Jodhpuri style lalmas. We serve it. We give a artificial smoke in it. So that's why it is called Dhungar lalmas. And even the paneer you have ordered, it is Dhungar paneer. So again, it is smoked. And इस moment में unfortunately I was a little short of words, but the food was genuinely very good. Very nice food. Hi guys, this is the morning now, and last night I ate dinner at Sheesh Mahal. The whole experience, the food, the chef, everybody was amazing. And also one thing that I remember was कि there was a server who came to my table and she said कि literally everybody in the property knows you. मुझे हमेशा ऐसा लगता है छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ मैं, but so many people acknowledge the content that I make and the travel videos that I make. It felt really nice and very very overwhelming. I wanted to stay true to the whole video experience, इसलिए मैंने obviously सब कुछ खुद से बुक किया था. This was not a collaboration, but still irrespective of that, the people here were very sweet and I had a great time here. So if you're looking on a special occasion to spend your time in Udaipur, and especially if you do want to have a really luxurious experience, I think I would for sure recommend the Leela. For me, one of the standout features of staying in this property was that yesterday I got to see the sunset from my room over here in this corner, and today morning I got to see the sunrise in this corner. जहाँ तक बात करें
करें बजट की तो मतलब ऑफ कोर्स यूजिंग द वर्ड बजट वोंट इवन बी राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दिस इज लग्जरी, बट दिस रूम कॉस्टेड मी 35,000 and with taxes it came down to 40,000. My lunch yesterday was around 4,000 and my dinner was around 5,000, and apart from that breakfast was included in my stay. The whole total of this comes down to, this whole experience comes down to around 49,000, and the boat ride that I did yesterday was a part of the package because you get a complimentary 20-minute boat ride. Alright guys, so with a very heavy heart I must say that I'm departing from the Leela Palace. दोस्तों इसके साथ हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड में, एंड लेट मी जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग बोथ द एक्सपीरियंसेस बजट एंड लग्जरी वर ब्रिलियंट इन देयर ओन रिस्पेक्ट एंड राइट. दोनों में मुझे बहुत मजा आया एज यू मे हैव ऑलरेडी सीन इन द वीडियो. बजट डे का मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है एंड द 2 days कॉस्टेड मी अराउंड 6,500 रुपीज़ एंड द लग्जरी डे ऑफ कोर्स 1 day कॉस्टेड मी अराउंड 50,000 रुपीज़. सो ये रहा कॉस्ट का कंपेरिजन एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच एवरीथिंग हैड इट्स ओन पर्क्स एंड आई वुड से द लग्जरी obviously had its own great overwhelming feeling of spending a day like royalty. People were amazing in both places, whether it was a budget stay or whether it was a luxury stay, and I really enjoyed meeting the people of Udaipur over here. अंत में बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी that I think after this whole experience मुझे ऐसा लगता है personally for myself that I just want to be the kind of person who can enjoy both लग्जरी एंड बजट इक्वली. मतलब आई डोंट एवर वांट टू से कि नहीं बजट में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या फिर नहीं सिर्फ लग्जरी में ही ट्रैवल करना चाहिए. आई वांट टू स्टिल रिमेन द सेम पर्सन हु कैन एंजॉय बोथ इक्वली and take you also on more such adventures. So let me know what did you think of this video, and like this video if you liked the concept, and let's make it reach 50,000 likes so that I can take you on more such experiments and experimental journeys. And I will see you next time in another video. Make sure you also subscribe to our channel. Bye bye guys. बात करेगा आज इस ट्रिप की तो मुझे तो उनका जो है लग्जरी और उनका जो है बजट फ्रेंडली जो है वो दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे. मैं वैसे जो है अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं वैसे बजट फ्रेंडली वाला बंदा हूँ, मैं लग्जरी वाला बंदा नहीं हूँ. लेकिन हाँ मुझे एक बंदा है मेरी लाइफ में जो बहुत फोर्स करता है तो मैं लग्जरी वाली साइड पे भी चल पड़ता हूँ. मैं आपको सच बताऊंगी, मौसम बजट में नहीं बिलो बजट जाने वाला बंदा है. मैं हकीकत बता रही हूँ इसकी. अगर घर से किसी से भी आप लोग गारंटी ले लोगे ना इस बात की जो मैं कह रही हूँ कंफर्म करने के लिए, कोई डिनाई नहीं करेगा. मतलब एक होता है बजट, अगर आपको जैसे कि इसमें 3,500 रुपीज में उनको मिल गया, ठीक है ना, उसके बाद मौसम होगा इससे नीचे देखते हैं मिल जाएगा. बट ये नहीं देखता कि हमारा कंफर्ट जोन क्या है. कि हाँ ये अब जैसे 3,500 में उनको मिला था और उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, बट कमाल की जगह थी, बहुत खूबसूरत थी. मुझे उनका बेड बहुत अच्छा लगा था. इवन के जो बाहर बैल्कनी थी वहां पर जो सिटिंग एरिया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था. तो मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं. वाकई में एक व्यू होना चाहिए जहां पर आप रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ना बंद कमरे बिल्कुल अच्छे नहीं यार. देखिए अगर वो जो इन्होंने 3,500 में 2 रातों के लिए कमरा इन्होंने जो करवाया था वो अगर मैं बात करूँ वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था. अगर वो इतने में यहाँ पर भी मिले ना, मैं तो वैसे कभी डिनाई ना करूँ. लेकिन लास्ट में हमारे साथ क्या हुआ था कि एक हमने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी एक जगह यानी कि गेस्ट हाउस जो है वो बुक कराया, लेकिन उन्होंने हमें बेसमेंट में फेंक दिया. तो मेरे लिए रहना मुश्किल हो गया और आई थिंक उसी वजह से हम लोग जल्दी वापस आ गए थे. वरना शायद हमारा ट्रिप 5 दिन का हम लोगों ने प्लान किया था, 2 दिनों में हम लोग वापस आ गए थे. क्योंकि मुझे कभी भी ऐसे, मैं चाहती हूँ कि जब हम लोग कहीं पर भी स्टे करें ना तो आपको एक व्यू मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे सफोकेशन होती है ऑनेस्टली बिल्कुल बंद जगह पर. बट ये कि जिस तरीके से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेकर ये वीडियो बनाई है वो बहुत अच्छी है. और बीच में पहले उन्होंने एक बजट फ्रेंडली और लोकल जगह भी दिखाई, फूड भी थोड़ा सा उन्होंने दिखाया, तो वो बहुत अच्छा था. यानी कि आप किस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हो वो भी. हाँ मैं ये जरूर मानती हूँ कि मैं जरूर प्रेफर करूंगी जिस तरीके से वो थोड़ी सी स्ट्रेस थी कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए. मैं अब मौसम की बात सुन के कहूंगी मौसम बिल्कुल भी नहीं मानेगा. अगर मैं मौसम के साथ ऐसी कोई बात करूंगी मौसम नहीं मानेगा. फिर मैं सोचूंगी क्या करूं. फिर मैं इसको ऑप्शन दूंगी, अच्छा चलो ऐसा करो तुम इतना शेयर कर देना, मैं इतना शेयर. हाँ. ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे.
नहीं, ये इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना, ये कभी नहीं करेंगी, ये मुझे कन्विंस करेंगी, ये मुझे जो है ना वो ये मुझे वो लालच वाले तरीके, यार देखो यार इस तरह नहीं, इस तरह यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये होगा, ये होगा, एक मिनट तुम्हें कभी अफसोस नहीं होगा, तुम यहाँ पर आए, तुम यहाँ पे नहीं गई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये इस तरह कन्विंस करेंगी, ये इस तरह कन्विंस नहीं करेंगी। ठीक है, मैं जो है 80 रुपए मैं देती हूँ, 20 रुपए तुम देना, इस तरह नहीं कन्विंस करेंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मैं ठीक है, मैं जो पर नाइट पे कर रहा हूँ उस पे तुम्हें नहीं उतना से क्या से बोलते हैं सहूलत दूंगी, बट उस तरह से क्या मतलब उस पे नहीं सहूलत दूंगी, बट आई थिंक मैं इसको कंपनसेट करने की कोशिश करूंगी, चाहे वो फिर डिनर की फॉर्म में हो या किसी ना किसी सूरत में मैं इसको कंपनसेट करने। मौजम बस अब कर दो, जाने दो, अच्छा ठीक है भाई, मैं ना किसी दिन घर वालों से पूछ भाई, मैं बताता हूँ, शहर के अंदर ये लाहौर की बात करें ना तो हाँ लाहौर में ये कंपनसेट करती हैं, लेकिन जब हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना तो पूरा करते हैं, बराबर देखा अपने शहर में बंदा कौन सा होटलों में रहता है, लेकिन ये कि खाना तो अच्छे से खिला ही देते हैं ना फिर भी यार, एकदम मतलब हम लोग ज्यादातर अगर सीरियसली बात करें तो हम लोग ज्यादा फाइन डाइनिंग करते हैं, अब बहुत कम होता है क्योंकि स्ट्रीट फूड यहाँ पर इतना ज्यादा मिलता नहीं है। और जो जैसे कि हम लोगों ने इसमें भी देखा, मुझे तो कसम से वो जो शॉप्स ही दुपट्टे रंग बिरंगे नजर आ रहे थे, और साथ में वो जो एक ट्राउजर भी मुझे साइड पर नजर आ रहे थे, मतलब मेरा दिल करता कसम से ऐसी शॉपिंग करने का, क्योंकि इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ आपको इतनी वैरायटी मिलती है वहां पर। फिर उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे लगा शायद वो ताज लेक पैलेस में गई हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर इसमें 1 मिलियन हो गए तो फिर जो इससे इनकम होगी उससे फिर वो वहां पर विजिट करेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं अगर लीला पैलेस की बात करूँ तो वह है तो वाकई बहुत शानदार जगह, लेकिन जो है मैं वहाँ पे खाना खाने जाना चाहूंगा और खाना खा के वापस आ जाना चाहूंगा। रात मैं वहां पे नहीं रहना चाहूंगा क्योंकि रात बहुत महंगी है वहां की 35,000 रुपया रात का, उनका ऑलमोस्ट 50 लग गया है। और अगर मैं रात स्टे करूंगी ना तो मुझे लगता है फिर मैं सारा दिन बेडरूम में ही रहूंगी। भाई मैं पहले जब बता दूं, ये अगर फॉर एग्जाम्पल चली भी जाएंगी ना तो इनके अगर वहां के वो 35,000 रुपया उन्होंने पे किया, अगर हम अपनी बात करें 70-80 हजार रुपया, तो भाई सीधी सी बात है। सबसे पहला तो सवाल मैं इससे उठाऊंगा, पूरे बजट का ट्रिप का जो बजट है वो होटल वालों को देकर आना है क्या? नहीं, मैं बहुत मेरी एक बात सुनो, कहीं पर भी जाना होता है मैं ये जरूर बात बोलती हूँ इसको कि जो रहने की जगह ना वो अच्छी होनी चाहिए, बट हाँ वो बजट में भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हाँ भाई इतना वो लेविश हम उस पर स्पेंड करें कि जी हमारे वो कहते हैं ना हैसियत से भड़ के रोज है, वैसा मैं कभी नहीं कहती। बट हाँ ये चीज है कि हम लोग खाना खाने जरूर जाएंगे, अगर ऑप्शन होगा कि आप यहाँ पे लंच या डिनर कर सकते हैं तो वो करके वापस आ जाएंगे, बस थोड़ी सी 2-4 तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। जो सनसेट और सनराइज है ना वो कहीं और पर जाकर मुझे लगता है मैं उसका व्यू ले लूंगी। बट सीरियसली ये एक बहुत हिम्मत की बात है जिस तरीके से तानिया जी अपने सही बात है, ये बहुत मेहनत होती है भाई। आप जब वीडियोस भी बनाते हैं, आपकी वीडियोस आपको नहीं पता होता उस पर कितने व्यूज जाने कितने नहीं जाना, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन आप अपने पैसे अपनी सेविंग्स में से निकाल कर जब पैसे खर्च करते ना तो यकीन मानिए दिल को कुछ होता है। अभी मेरे दिल को तो बहुत कुछ होता है भाई। अच्छा वैसे मैं एक मजे की बात बताता हूँ, जब जो है हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं अमोल बग्गा जी, उन्होंने भी ये वीडियो हमें सजेस्ट की थी, तो जब उन्होंने मुझे ये वीडियो देखी ना तो इसका जो वो थंबनेल था ना उस पे एक साइड पे लिखा था 3500, एक साइड पे लिखा था 35,000, तो मैं उस टाइम समझे शायद एक जो सूट इन्होंने खरीदा वो 3500 का खरीदा होगा, एक सूट जो पहना वो 35,000 का पहना होगा। मेरे लिटरली मेरे दिल में वो चीज आई थी, लेकिन बाद में जब फिर मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की तो फिर इन्होंने बताया कि क्या नाम लेते हैं, हाँ ये वीडियो जो है आई है, ये हम देखेंगे बाद में। हाँ, लेकिन ये कि हमारे और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट की थी, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली ये आई थी उनके चैनल पर तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कुछ दिनों के बाद इसको देखेंगे। बट ये कि ओवरऑल बहुत खूबसूरत मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंस था, इतना मजा आ रहा था देखने का। और स्पेशली ऑटो पर जैसे उन्होंने मतलब ट्रैवल किया और ऑटो वाले जो अंकल थे मतलब उनकी बात भी मुझे बड़ी मजे की। अच्छा एक जगह थी हनुमान जी के नाम से, हनुमान घाट, हाँ वो क्या है वो जरूर बताइएगा हम लोगों को। लेकिन ये कि वो बहुत बहुत खूबसूरत था वहां का व्यू, उसके ऊपर देखा था पानी के ऊपर ऐसे कुछ आई थिंक पत्ते हाँ, कुछ था वहां पर मुझे नजर आ रहा था। और मुझे ना ऐसी शाम बहुत अच्छी लगती है जिसमें वो बहुत सारे लोग एक मतलब इकट्ठे होकर गाना गा रहे थे और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे थे। तो मुझे हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर शुभांकर वो भी याद आ गए थे क्योंकि वो क्लैप बॉक्स
हाँ और यार clap तबला। box, हाँ एग्जैक्टली बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत मजा आता है मुझे उनकी वीडियोस देखने का। बट एनीवे ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर शीश महल की मैं वैसे जाते जाते बात करना चाहूंगी। शीश महल का मुझे लग रहा था कि जो जैसे वो शीश महल बना होता है ना, उस टाइप की कोई जगह उस तरह की जगह के हाँ, I बीच में मैं जो सोचा था कैंडल लाइट कैंडल्स जल रही होंगी और पूरी रोशनी रोशनी हुई होगी, मैं इस तरह कुछ समझ रहा था। हाँ। लेकिन ये ओपन शीश महल था। लेकिन जो रोटी बीच में दिखाई गई है ना, वो वाकई में पहले उसका आटा गूंदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में मैं खा रही थी तो आटा गूंदना ही मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बिल्कुल हाथों के साथ चिपक जाता है, वो गूंदा ही नहीं जाता। आटा भी इनसे कह रहा था क्यों अपने हाथों को तकलीफ दे रही हो। Oh my God, बस कर दो, मैं काम करती हूँ। अच्छा ऐसे ही मतलब ये बता प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती घर में। मैं करती काम बट थोड़े काम करती हूँ। लेकिन ये कि ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जब भी आप कहीं पर जाते हो ना, तो आपका दिल होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करें। और सीरियसली मैं इंडियन ट्रैवल ब्लॉग की जितनी भी वीडियोस देखती हूँ, मेरे दिल में यही ख्याल आता है, यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आप मतलब इंडिया में इतना कुछ देखने के लिए है और इतनी वैरायटी है कि कहीं पर भी चले जाओ आपको एक नया नजारा, नए लोग, नई शॉपिंग, मतलब जिसको देखे मेरा दिल बहुत ललचाता है और एक नया एक्सपीरियंस रहता है लाइफ। और एक जाने से पहले जो है 2 सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक तो लीला पैलेस था, एक ताज पैलेस था, इसके अलावा और कितने पैलेस हैं? हाँ, कितने पैलेस हैं जो पानी के अंदर बने हुए हैं? दूसरा ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये अब बने हैं, ये पुराने बने हुए, कैसे बनाए थे ये भी बताइएगा। ये पुराने वाले पैलेस, ताज पैलेस मुझे पुराना लग रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है, लेकिन जो वो लीला पैलेस है उसका स्ट्रक्चर मुझे इतना पुराना नहीं लग रहा। लेकिन कैसे बनाए गए उस जमाने में, भाई ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये भी बताइएगा कि आप 3500 वाले में रहेंगे या फिर 35,000 रुपए वाले ये भी बताइएगा, या वो 55,000 वाले में रहेंगे। हाँ, मतलब इन शॉर्ट पूछना हम ये चाहते हैं कि क्या आप कभी मतलब इतना लग्जरी को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे अपनी लाइफ में या सिर्फ नहीं? एक रात के लिए क्या 55,000 कुर्बान करना चाहेंगे या 35,000 कुर्बान करना चाहेंगे? जरूर बताइएगा। मुझे लगता है जो हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, हम लोग सीरियसली मुझे लगता है कि ना इतना वो नहीं होता हमारे में, क्या कहते हैं, जिगरा नहीं होता कि हम एक साल में इतने पैसे स्पेंड करते हैं। इवन के जो लोग बहुत बहुत महंगे कपड़े भी खरीदते हैं ना, लाइक लाखों में कपड़े खरीदते हैं, तो मैं वो भी हैरान होती है समटाइम कि इतने कैसे पैसे खरीदेगा। आप कम बजट में भी बड़े प्यारे बन सकते हैं, लग सकते हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल अपनी कहते हैं इनकम के लिहाज से इंसान जो है ना काम करता है। शायद जो अमीर लोग होते हैं ना उनके उसमें इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पैसों में, जब वो इतने से खर्च कर लेते 50,000 रुपए, जो हमारे बहुत फर्क लगता है। वेल गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा था, वीडियो बहुत मजा आया एंड आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ हमें वीडियो से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।